بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، منیر شاکر۔ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ پر، یہ یشاء لفظ جو ان پر ہو رہی ہے، تو اب اب جو بات کرنا چاہتا ہوں ان بمانی اگر، یہ بھی عرض کیا نا کہ انشاءاللہ جب وہاں چونکہ لفظ زیادہ مناسب لگتا تھا تو ہو گیا۔ خیر اب یہ موضوع ہے ان بمانی اگر کی، کہ اگر بھی استعمال ہوا ہے تو اس کی وضاحت تھوڑی سی کرتے ہیں۔ لو شاء اللہ ہو کے لفظ بھی آیا ہے نا، لو اگر اللہ چاہتا۔ اچھا، میں میرے اچھے بھائیوں جس نتیجے پر پہنچا ہوں یا جو میں سمجھا ہوں، یہ بات اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی، اللہ کا چاہنا، یہ اللہ کی منظوری، اللہ کا منظور ہونا، یہ ساری بات وہاں سے ہے۔ اور اس میں جو ہم نے مغالطہ کھایا ہے نا، میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا ہے، وہاں سے جبریہ عقیدہ اور وہاں سے یہ مسئلہ تقدیر پیدا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا نہیں، اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کو منظور نہیں، یہ سب کچھ ہی اسی کا ہی ہے۔ اسی نے چاہا، اسی نے کیا۔ یفعل یا یفعل ما یرید، یہ شاہ کے لفاظ جو ہیں یہ کس وقت کے ہیں، جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے یہ مغالطہ ہے، یہ عقیدہ جبریہ کا اور یہ مسئلہ تقدیر کا، کہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے جیسا چاہا ویسا کب کیا، جیسا یہی بنتا ہے یا فارم یورید، جیسا چاہتا ہے کر۔ بھائی جب عالم خلق ہوا اس وقت کر دیا، یہ ہے بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور جو میرا اس پر ہی یقین اور ایمان ہے، اللہ کا چاہنا جو ہے، اب اللہ کا چاہنا اس کے قوانین کا پابند ہو گیا ہے۔ اب اللہ کی مرضی اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابند ہو گئی ہے۔ یہ وہی قوانین جو قانون مشیت عرض کرتا رہا ہوں، جسے قانون مشیت کہتے ہیں، لا آف نیچر ہم بولتے ہیں، یہ ان قوانین، وہ خود بھی یا اس کی مرضی بھی یا اس کا چاہنا بھی ہمارے ریلیٹڈ جو کچھ ہے وہ ان کا پابند ہو گیا۔ پابند وہ خود ہوا۔ اگر اس کو کسی نے پابند کیا ہوتا تو یہ اس کی شان کے خلاف بات جاتی ہے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں، وہ اپنی مرضی سے ہوا، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے۔ یہ اگر ہے نا میشاء ما یرید، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا، تو یہ بھی اس نے اپنی مرضی سے کیا، کر چکا ہے وہ ایسا۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ کرتا ہے، وہ ایسا کر چکا ہے۔ اس نے کب کر چکا ہے؟ جب عالم امر سے عالم خلق وجود میں آیا، اس وقت، اور اس وقت ہی سارے قوانین سب کچھ وجود میں آ گیا۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک مغالطہ میرا خیال جو ہم نے کھایا ہے وہ یہاں سے کھایا ہے۔ بات کر رہا ہوں ان بمانی اگر کے۔ اب یہاں انشاءاللہ میں ان بمانی لو، یا جیسے لو شاء اللہ، لو کا معنی بھی تو اگر آیا نا، آیا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، لو شاء اللہ پر بات کر چکے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے کہ سینکھیا موجب ہلاکت نہ ہو، سینکھیا سے بندہ نہ مرے، اس نے اس کی بنانے کی وجہ، تو ہم اس قسم کا قانون بنا دیتے، لیکن چونکہ ہم نے ایسا چاہتے نہیں تھے، ہم نے چاہا نہیں، ہمیں چاہا نہیں، نمک کو چاہا نمکین ہی ہو، تو لہذا اس کو نمکین بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو نمکین نہ بناتے، اس وقت کچھ اور بنا دیتے، کیونکہ ہم چاہا ہی اللہ نے چاہا تو نمکین ہے نا۔ پانی مطلب صحت کے لیے ضروری ہے، یہ اس وقت کا حکم ہے نا کہ پانی پیئیں گے پیاس بجھے گی آپ کی، اور بھی جو بھی اس کی خصوصیات ہیں پانی کی، تو وہ اس وقت بنا دی۔ اس نے ایسا اس وقت چاہا، اس وقت چاہا۔ قانون مشیت جب بنے، جب عالم خلق بنا، ہماری مشیت یہی تھی کہ سینکھیا باعث ہلاکت ہو، اس لیے ہم نے ویسا قانون نہیں بنایا، بلکہ ایسا قانون بنایا۔ یہی مفہوم ان آیات کا ہے جن میں ان بمانی اگر آیا ہے۔ اب معنی اگر، اس کی اگر مثالیں ہیں، میں دے دیتا ہوں مثالیں اس کی، یعنی کہ ان بمانی اگر آیا ہے جن میں، کہ ہماری مشیت میں ہی ایسا تھا، ہم نے اس وقت چاہا ہی ایسا تھا،
हमारी उस वक्त मर्जी ही ये थी, हमारा उसी वक्त सब कुछ मेरा उस वक्त यही था, उस पर कोई मजबूरी नहीं थी, कोई उसका मशीर नहीं था, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, अपनी मर्जी से किया उसने। इसलिए उसकी मशीयत उसकी मर्जी से अलहदा नहीं है। ये गलत बात करके हम बात को किसी और तरफ ले जाते हैं। क्या अब उसकी कोई खुशनुदी किसी और चीज में होगी? उस वक्त भी उसकी खुशनुदी के मुताबिक उसने मशीयत के मुताबिक हर चीज अपनी मर्जी से बनाई, अपनी चाहत से बनाई। सूरह यासीन में है कि तुम देखते हो कि कश्तियां इस कदर वजन लादने के बावजूद किस तरह सतह आप पर बतख की तरह तैरती फिरती हैं। ये हमारे कानून मशीयत के मुताबिक होता है। इन शाह नुगरिक हम, अगर हमारे कानून मशीयत ऐसा ना होता तो फिर ये कभी तैर ना सकती, कानून उसने ऐसा बनाया। पानी में डूब जाती, तुम सोचो कि लोहे की एक सुई पानी में झट डूब जाती है, लेकिन हजारों टन वजनी लोहे का जहाज इस कदर सामान और सवारियां लादकर इस किस तरह तैरता चला जाता है। यह है हमारा कानून मशीयत की कारफरमाई, जिसकी रूह से तय कर दिया गया कि किस जिसामत और वजन की चीज पानी पर तैरती रहेगी और कौन सी शय इसमें डूब जाएगी। यही बात इन हवाओं के सिलसिले में कही जिनके जोर पर बादबानी कश्तियां चलती हैं। देखे मेरे भाई, जिन्होंने ये कानून समझ लिया, जान ली, उन्होंने कश्तियां बनाई, उन्होंने जहाज बनाया कि ये अल्लाह का कानून ऐसा है कि इसमें इतने टन वजनी जहाज जो है ये नहीं डूबेगा और सुई डूब जाएगी। ये कानून उन्होंने समझ लिया तो बनाया, जहाज बनाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तनबीह करते, अगर तुम अपनी गलत रवश से बाज ना आए तो तबाह हो जाओगे। इसके जवाब में वो कहते कि तुम जो हमें इस तरह डराते रहते हो तो तबाही तुम ले ही क्यों नहीं आते। इसके जवाब में वो कहते कि इन्नमा यातिकुम बेहिल्लाहो इन शाअ। ये 11 नंबर सूरत की 33 नंबर आयत। ये तबाही अल्लाह के कानून मशीयत के मुताबिक, कानून मशीयत क्या, मोहलत के वक्फा के बाद, मोहलत का वक्फा आया करती है, ये उसके मुताबिक आनी है, मेरे इख्तियार में नहीं। मेरे इख्तियार मैं जो मुझे जो बात बताई गई कि ये तबाही आएगी, तुम जिस गलत रवश पर चल रहे हो इसका नतीजा ये निकलना है, ये कन्फर्म बात है, पक्की बात है। कब आएगी? वो मोहलत का वक्फा है, ये कानून मशीयत है। लिहाजा तुम्हारी तबाही कानून मशीयत के मुताबिक आएगी, उसी कानून के मुताबिक तुम पर आ जाएगी। अगली मिसाल है, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, इसे मुकम्मल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद ही ले लिया। लिहाजा ये तसव्वुर तक भी नहीं किया जा सकता कि कुरान का कुछ हिस्सा जाय हो गया। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कुरान का कुछ हिस्सा जाय हो गया, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा उसने खुद ले लिया। इस सिलसिले में कहा कि वाला इन शे ना ला नजहा बन्ना बिल्लाजी ओ है ना अलैका। ये 17 नंबर सूरत है और 86 नंबर इसकी याद है। अगर हमारी मशीयत में ऐसा होता तो हम कुरान का कुछ हिस्सा ले जाते, लेकिन हमारी मशीयत में ऐसा नहीं था, इसीलिए हमने इसे मुकम्मल करके इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। इसका एक हरफ भी जाए नहीं होगा। ये मैं मिसालें दे रहा हूं, लेकिन हमने तो जाय कर दिया ना। हमने तो रवायात के जरिए वो जो बकरी खा गई है पत्ता, जिस पर रजम वाली आयत है लिखी हुई, वो खा गई ना बकरी, तो कुरान पाक में तो नहीं है। तो अल्लाह कहता मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। हम चाहते तो उसका कोई हिस्सा ले जाते, लेकिन हमारी मशीयत में ये बात नहीं है। हमने क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, इस लिहाजा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रवायत के जरिए हमने वो आयत बकरी को खिला दी है। बल्कि यहां भी कह दिया कि यख्तिम आला कल्बे का। ये 42 नंबर सूरत है और 24 नंबर इसकी आयत है। अगर इसकी मशीयत में होता तो ए रसूल वो आपके दिल पर मुहर लगा देता और इस तरह ये कुरानी पैगाम आपके कलब में दाखिल ही ना हो सकता, लेकिन अल्लाह की मशीयत ऐसी नहीं थी, उसकी मशीयत ऐसी नहीं थी। बस मैं इसी पर इक्तफा करता हूं कि आप मतलब आपको समझ आ गई होगी इस बात की, इनके मानी की, इन बमानी अगर की है। अगर उसकी मशीयत में ये होता उस वक्त जब उसने आलम खलक तय किया, ये बात समझने वाली है। इस बात को आप समझ गए तो फिर मेरा ख्याल ये सारा मसला, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये सारे इंशाअल्लाह के भी, माशाअल्लाह के भी, लो शाह कमी ये शाह को, और मसला तकदीर और मसला जबर और ये सारी बात की
आपको समझ आ जाएगी ये बात को, अगर आप समझ गए तो बस मैं इतनी सी बात ही करना। अगर उसकी मशीयत में उस वक्त होता, उसने उस वक्त सब कुछ तय कर दिया। और यहां फिर मैं बात को दोहराऊंगा, हम इंसान के बारे में मुगालता खा गए हैं कि अब इसके बारे में भी ये, और उस वक्त इसके बारे में क्या तय हुआ, वो उस वक्त ही है। आलम खलक जब खलक हुआ उस वक्त ही तय हुआ इंसान के बारे में। क्या हुआ कि ये अपनी मर्जी का मालिक होगा, मैं इसको इरादा और इख्तियार दे रहा हूं, अकल दे रहा हूं। जब फरिश्तों से मुकालमा हुआ, लाने वाला हूं मैं जमीन पर खलीफा, खलीफा का भी मतलब हमने गलत ले लिया, ये कोई अल्लाह का खलीफा नहीं, जो पहले मखलूक थी उसका खलीफा है। आगे पहली मखलूक क्या थी, जिन थे, उनको पहले पैदा किया, वो उसकी पहली मखलूक थी। उसके बाद उसने जमीन पर खलीफा बनाया, इंसान को, आदम को बनाया। ये हुआ, ये है खलीफा का, ये अल्लाह का खलीफा नहीं है। ये उस कौम जो पहले थी वो कौम, उसके बाद वह खल्फ में आने वाला है। इसलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह खलीफा तो रसूल नहीं कहते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन नाम उन्हें बोलते हैं। खलीफा हैं, चार खुलफा हैं, खुलफा राशिदीन हैं, ये लफ्ज कहते हैं। खलीफा तो रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खलीफा मतलब ये कि ये पहले जिन्नात थी, कौम थी, अब उसके बाद ये मैं खलीफा। तो फरिश्तों ने जो कुछ कहा उस वक्त की बात है, ये इंसान को उस वक्त ये आजादी दे दी गई, इरादा और इख्तियार अपनी मर्जी से कर। अब इसका जो कुछ भी करना है उसमें अल्लाह मुदाखलत नहीं करता। मेरे भाइयों ये बात समझने वाली है, ये बात समझ गए तो बहुत ही मसले हल हो जाएंगे, बहुत मसले हल हो जाएंगे। कि अब जो कुछ भी इसने करना है या करता है, ये अपनी मर्जी से करता है, इसीलिए इससे पूछा जाना है, इसीलिए इसका हिसाब है। यही ईमान बिल आखिरत है कि हम जो कुछ करते हैं हमारा हिसाब किताब होना है, हमसे आखिरत में इसके बारे में पूछा जाना, इसलिए कि हम आजाद है, इसलिए पूछा जाना है। जब तुम मेरे पास हो मैं पूछूंगा तुमसे, कुरान पाक कहता है तुमसे सवाल करूंगा, सुमाला तो सालना योमा ये का तकासर की आखिरी आयत, और भी कुरान पाक की याद साहब। तो मान बिल आखिरत ईमान का सर है, सर को काट दें बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो ये ईमान बिल आखिरत में जो मेजर चीज है, बड़ी चीज है, वही है हमने जो काम किए उनका हमसे हिसाब लिया जाएगा। अगर वो काम अल्लाह ने करवाए हमसे तो फिर तो अल्लाह के बारे में क्या तस्वर होता है, फिर तो माज़अल्लाह अल्लाह गैर मुनसिफ है, और माज़अल्लाह अल्लाह जालिम है, भी काम भी खुद कराए और पूछे सवाल जवाब दो ही करे, और जवाब अगर ना आए और उसके मुताबिक काम ना किए हुए तो उनको कहेगा दोज़ख में भेज दो। ये क्या बात हुई, माज़अल्लाह ऐसा तो नहीं है। कुरान है, कुरान में वो जगह जगह तो अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जुल्म नहीं करता क्या मतलब, इंसाफ करता है, वो इंसाफ करता है। वो उससे बढ़कर भी कोई मुनसिफ हो सकता है, वो सबसे बड़ा मुनसिफ है। तो हिसाब किताब उसने मुनसिफी पर करना है ना, मुनसिफ है सबसे बड़ा, सही और साफ फौरी हिसाब करने वाला, तेज हिसाब करने वाला, तो वो है। तो फिर माज़ क्यों जुल्म करेगा, वो अपने बंदों पर क्यों जुल्म करेगा वो। तो मैं ये बात समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जो कुछ भी तय हुआ उस वक्त। अब बंदे के बारे में ये कह दिया मुकद्दर शुदा, उस वक्त इसके बारे में सारा कुछ लिख दिया गया, नहीं, ये गलत बात है। बंदे ने जो कुछ करना है, इसकी स्लेट साफ है, तख्ती साफ है, इसने खुद लिखना है, अपना मुकद्दर ये खुद लिखता जा रहा है। जो हमारे अपने अमाल हैं, नामा अमाल, वो हम खुद लिखते जा रहे हैं। इसलिए कहा ना इसके गले में होगा वो लिखा हुआ सारा कुछ जो कुछ इसने किया है। तो खैर बात लंबी हो गई, तो मैं ये कहता हूं कि ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि उस वक्त ही हुआ। और ये मशीयत एज़ी है कि इंसान की आज़ादी और खुद मुख्तारी और अकल, कि इसकी दुनिया में इसकी अपनी मशीयत चलेगी। ये मशीयत एज़ी है कि इंसानी मशीयत, इंसानी दुनिया में इंसानी मशीयत ही कार फरमा होगी, ये उसकी मर्जी है। नतीजा उसका कानून के तहत चलेगा, उससे कोई बाहर निकल नहीं सकता, ये उसको चेंज कर नहीं सकता। ये इख्तियार नहीं है बंदे के पास, काम करने का इख्तियार पूरे का पूरा 100% इसके पास है, लेकिन उसका नतीजा तब्दील कर लेना। जो काम करें आप, सैकिए खाएं, किस नीयत से खाएं, तो वो तो अपना असर दिखाएगा। ये नतीजा होता है। पानी में डूबेगा, तैरना आता नहीं, वो डूब के मर जाएगा, ये नतीजा है। ये बदल नहीं सकता कोई, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे को तैरना नहीं आता, पानी में चले जाए, पानी गहरा वो मरे ना, ये नहीं हो सकता। तो वो अपने कानून को बदलता नहीं। बस यही बात मैं आपको
अर्ज करना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी। बाकी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी।